Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful, most gracious, and most beneficent. Now, today I discuss the measures of the central tendency or the averages. My name is Muhammad Abdullah. I am student of fourth year MBBS, studying in the Rai Medical College, Sargodha. Welcome to the lecture. So, first of all, I discuss about the basic concept. Then I will turn out to the main core of the lecture. So, I use both the different technical terms. You should understand by the end of lecture these terminologies. So what is the difference between the class interval and the class boundary? So इसके अंदर आपने ये लाजमी याद रखना है कि क्लास इंटरवल क्या है कि व्हेन द अपर लिमिट ऑफ द बिकॉज दीज terminologies class interval and the class boundaries are used particularly for the group data. For the group data, the data may be either in the form of the class interval or the class boundary, so you should recognize these things in the group data, because the measurement of the mean, mode and median depend upon these values. If you not perform the first step correctly, then ultimately your answer at the end of your calculation is always wrong. So please be remember these terminologies. But these are the class intervals and the class boundaries. Ci is the class interval. So when the upper limit of the first class interval becomes the lower limit of the second class interval, this is known as the class interval. So for example, 15 to 19 is the first observation, 19 to 24 is the second observation. So you note that 19 is the upper limit of the first class interval. It becomes the lower limit of the second class interval. This is what the definition tells you, that is the when the upper limit of the first class interval becomes the lower limit of the second class interval, this is known as the class interval. अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 15 to 19 है, तो 19 हमारे पास देखें अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, उससे जो अगली वाली क्लास नेक्स्ट क्लास आ रही है उसकी लोअर लिमिट 19 ही होनी चाहिए, तो वो 19 होगी, तो हम उसको कह रहे हैं क्लास इंटरवल. सेकंड के अंदर देखिए मैंने कंपैरेटिवली एग्जांपल दी हुई है कि व्हेन द क्लास बाउंड्रीज इज just reverse of the class interval. When the upper limit do not becomes the lower limit of the second class interval or the next class interval, it is known as a class boundary. So 15 to 19 is the first observation. अब क्लास इंटरवल में क्या था कि 19 जो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है उसकी लोअर लिमिट बन गया था, लेकिन क्लास बाउंड्री में क्या होगा कि वो लोअर लिमिट नहीं बनेगा. इसके अंदर आप देखिए 19 की बजाय 20 लिखा हुआ है. सो ये होती है क्लास बाउंड्री. जब हमने व्हेन वी कैलकुलेट द मोड फॉर द ग्रुप डाटा, you should first convert the class boundaries into the class interval, otherwise your whole calculation will go wrong and your file number will directly deducted from the exam because you miscalculate the observations. देन कन्वर्जन ऑफ द क्लास बाउंड्रीज इनटू द क्लास इंटरवल. अब हम क्लास बाउंड्रीज को क्लास इंटरवल में किस तरीके चेंज करते हैं. क्लास बाउंड्रीज पहले देखें, ये डाटा जो ग्रुप डाटा दिया हुआ है ये क्लास बाउंड्रीज हैं भी हैं कि नहीं है. ये देखें 15 to 19, अब यहाँ पे 19 की बजाय 20 है, तो पहली स्टेटमेंट ये आपको ऊपर वाली दो ऑब्जर्वेशन पढ़ते ही पता लग गया कि ये जो डाटा दिया हुआ है ये ग्रुप डाटा तो है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये है क्लास बाउंड्रीज. अब अपने क्लास इंटरवल के अंदर चेंज इसको कैसे करना है. यू डिटेक्ट द -0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड एड +0.5 इन द अपर लिमिट. फॉर एग्जांपल 15 के अंदर से -0.5 कर दें तो दैट टर्न्स आउट दैट इज़ अ 14.5 एंड 19 +0.5 कर लें तो कितना हो जाएगा 19.5. अब सेकंड वाले के अंदर भी सारों के साथ आपने सेम ट्रीटमेंट करना है. तो 20 में से निकालें -0.5 तो 19.5, 24 के अंदर ऐड करें तो 24.5. पहली दो ऑब्जर्वेशन को ये आप नोट कर लें कि यहाँ पे ये क्लास बाउंड्री थी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमने जब ये इसके साथ मैथमेटिकल इक्वेशन या स्टैटिस्टिकल टूल हमने अप्लाई किया है, माइनस वाला और प्लस हमने कर दिया है, तो देखिए 14.5 टू द 19.5. अब सेकंड के अंदर देखिए ये जो अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इट बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. सो इस तरीके हम क्लास बाउंड्रीज को क्लास इंटरवल्स के अंदर चेंज करते हैं. सक्सीडिंग के अंदर भी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर भी इसी तरीके चेंज हुआ है, वो आप देख लीजिएगा. यहाँ पे थोड़ी सारी मिस्टेक है कि यहाँ पे 35.5 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिस्टेकनली 35.5 लिखा नहीं गया, तो सॉरी फॉर डैट. देन वी मूव फॉरवर्ड.
The main topic today is the measures of the central tendency or the averages. So average होती क्या है, basically it is a single value intended to represent the distribution as a whole. एक सिंगल वैल्यू है जो होल डाटा को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होती है. अब ये नहीं हो सकता कि हम ना इंडिविजुअल वैल्यूज़ को डिस्कस करते रहें. हम एवरेज को डिस्कस करते हैं और उससे जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं जब भी हमने डाटा डिस्कस करना है. फॉर एग्जांपल यू कलेक्ट द डाटा एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ऑब्जर्वेशंस. सो यू calculate the average in order to discuss the different individual variation which shows the most dispersion from the average value. So in this view आप क्या करते हैं कि averages को हम also called as a measure of the central tendency. वो तीन होती हैं. एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड. ठीक है. अब ये तीनों आपने कैलकुलेट करनी है. आई मेड डिफरेंट वीडियोज़ ईच ऑन द मीन, द सेकेंड वन इज़ द मीडियन एंड द थर्ड वन इज़ द मोड. सो इन ऑर्डर टू शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द माई लेक्चर. सो why we measure the middle value, why we need to measure the middle value? Because in order to describe your results, because you don't have enough time to discuss each and everything or each and every observation of the data. For example, you collect the data and there are 100,000 observation or the 5 lakh or the 10 lakh observation. So you do not this is not feasible and possible to discuss all these values and write the results. So you describe the results in by calculating the middle value or the average value in order to giving a shape to your results in the form of the different representations of the data, that is the pie charts and different things, bar histogram, spectrogram, bar charts. These are the different things in order to shape your results by calculating your average value or the measures of the central tendency. So it is necessary to calculate the middle value when you have to summarize your information instead of talking about the individual values. So this is the basic purpose and the code to calculate the averages or the measure of the central tendency. That's why you calculate the middle values. So first measure of the central tendency is, there are the three measures of the central tendency. One is the mean, second one is the mode, and the third one is the median. So अब ये तरतीब अलहदा हो सकती है मीन, मोड, मीडियन की, लेकिन है तीन ही है. अब मीन क्या कहते हैं? मीन इज सिंपली इज द एवरेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट इज नोन एज द मीन. इट इज़ सिंपली आल्सो कॉल्ड एज एवरेज. हम इसको मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मीन, प्लीज़ बी रिमेंबर, देयर आर द डिफरेंट फार्मूलाज both for the group data and for the ungrouped data. Mean have different formula for the group data and the different formula for the ungrouped data. Similarly, mode have a different formula for the grouped and the ungrouped, and the succeeding median also have a different formula for the grouped as well as the ungrouped data. So mean को जो हम represent कर रहे होते हैं, that is mean is represented for ungrouped data as x bar is equal to the summation x divided by n. तो ये पेपर में आपने इस तरीके लिखना होता है. डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको आपने इस तरीके याद कर लेना है. देन वी हैव द फार्मूलाज. देखें कि यहाँ पे फार्मूला में डिफरेंस है और फार्मूला के अलावा जो एन है वो भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है. कैसे करता है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ. फॉर द अनग्रुप डाटा एक्स बार इज इक्वल टू द सुमेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और ग्रुप डाटा के लिए देखें एक्स बार इज इक्वल टू द सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन. अब देखिए सुमेशन का तो मतलब होता है सम, एक्स क्या है? ऑब्जर्वेशन है. जो अनग्रुप डाटा के अंदर एन है ना, वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो एफ है वो तो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, एक्स जो है वो मिड पॉइंट को शो कर रहा है. अब एक्स यहाँ पे जो शो कर रहा है ग्रुप डाटा के लिए, वो ऑब्जर्वेशन को शो नहीं कर रहा, वो मिड पॉइंट को शो कर रहा है या मिड वैल्यू को शो कर रहा है. ये डिफरेंस है. और एन क्या है? एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, और टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी भी हैं वो एन उसको कहते हैं. अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आंसर द व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज यूज. अब यहाँ पे देखिए ग्रुप डाटा तो है ही है. अब कौन सी फॉर्म में है? क्लास इंटरवल की फॉर्म में या बाउंड्री की फॉर्म में? ये पहले आपने इसको अपने से सवाल पूछना है कि बिकॉज जब आपका मोड आएगा तो मोड के अंदर इट इज़ necessary to convert if the data is given in the form of the class boundary and you calculate the answer, your answer whole answer is wrong. So
for the mode you first convert the class boundaries into the class interval. So that's why I am stressing upon the class interval and the class boundaries, because whole of your observation will depend upon the first step. Whole of your calculation depends upon the interpretation of the first step. So क्लास इंटरवल के अंदर देखें, ये क्लास इंटरवल है. क्यों क्लास इंटरवल है? बिकॉज 0 to 4 है और 4 to 8 है. मतलब द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. दैट्स वाई आई कॉल्ड एज अ क्लास इंटरवल. हमने कैलकुलेट क्या करना है? मीन. हमें पता लग गया कि ये डाटा कौन सा है. ये डाटा है ग्रुप डाटा. कौन सी फॉर्म में है? क्लास इंटरवल की फॉर्म में है. हमने क्या करना है? मीन. अब मीन के लिए हमारे ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला था वो आपको पता है कि कौन सा है. वो ये वाला फार्मूला है. तो देखें ग्रुप डाटा और फार्मूला ये वाला है हमारे पास, सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय द एन. अब हमने x is usually not given in the exam and not given in the question as well, so you should calculate the x prior to the calculation of the fx. So how you calculate the x? Simply you add the both the upper and the lower limit of the class interval and divided by 2 in order to calculate the x or the midpoint. फॉर एग्जाम्पल 4+0 आप करें, जो पहली ऑब्जर्वेशन है 4+0 4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हमारे पास आ जाएगा? मिड पॉइंट इसका आ जाएगा 2. 4+8 करें, क्या आएगा? 12. 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. तो इस तरीके आप सक्सीडिंग ग्रुप्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे. एक्स फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज गिवन इन द ग्रुप डाटा, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ द ग्रुप डाटा. सो अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन लिख दें, it is an incomplete question, I cannot calculate the mean from that because the information given is incomplete. तो आपको 5 नंबर मिल सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर आपकी जो है वो टेक्निकल और क्रिटिकल थिंकिंग को क्या पता चेक करना चाहता हो. बहरहाल वो एक अलग बात है, फ्रीक्वेंसी हमेशा ही क्वेश्चन में दी होती है. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? एफ एक्स. ये देखें, ये मैंने थोड़ी डिटेल दी हुई है कि इसके अंदर सुमेशन एफ क्या है, एक्स क्या है, एन क्या है. आई ऑलरेडी डिस्क्राइब प्रायर टू द in the prior 1 to 2 slides. I already discussed what is the difference of the formula for the ungrouped and the group data. So ये आपने याद रखना है कि सुमेशन एफ है, सुमेशन का मतलब सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी है, एक्स मिड पॉइंट है और एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं. प्लीज़ बी रिमेंबर, जो हमारे पास होता है ना अनग्रुप डाटा, उसके अंदर एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप डाटा के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं. बिकॉज ये ग्रुप डाटा है और इसमें फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं. आगे चलते हैं. मैंने अब इस क्वेश्चन को टेबल के अंदर सॉल्व किया हुआ है. अब देख लें मिड पॉइंट. जैसे मैंने आपको कहा था कि अपर एंड लोअर लिमिट वैल्यू को आपने प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो आपका एक्स निकल आएगा. अब एफ एक्स किस तरीके निकालना है? सिंपली मल्टीप्लाई f with x in order to calculate the fx. So 3 multiplied by 2 is equal to the 6. Then 6 multiplied by 4 is equal to the 24. 10 multiplied by 6 is equal to the 60. So ये हमारे पास निकल आई. अब fx को मैंने जमा कर दिया सारों को, तो टोटल कितना हमारे पास हो गया है? दैट 208 हमारे पास टोटल हो गया है. देन वी हैव द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, इन सारों को मैंने जमा कर दिया, तो ये बन गई 20. अब हमने हमारा फार्मूला क्या था? समेशन एफ एक्स. समेशन एफ एक्स कितना आया? 208. 208 को हम ऊपर रख देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एन जो है वो 20, तो 208 डिवाइडेड बाय 20 10.4. तो द अरिथमेटिक मीन को हम जो सैम्पल से कैलकुलेट करते हैं उसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं. तो सो द अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन टर्न्स आउट द 10.4. तो 10.4 हमारा इस क्वेश्चन का मीन आ गया. जो दूसरी चीज़ें हैं अनग्रुप डाटा के लिए, वो सिंपली बहुत आसान है. वो जब हम मोड डिस्कस कर रहे होंगे या मीडियन डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं साथ मीन को थोड़ा सा इस फार्मूले को रिवाइज कर दूंगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल फार्मूला. एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्स को फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये 5 ऑब्जर्वेशन दी हैं, तो हमने इनको सारों को प्लस कर देना है कि 1 + 2 3 हो गए, 3 + 3 6 और +4 10 हो गए और 5 15 आ गया. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई हमारे पास? 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू द 3 आ गया. तो ये इस तरीके, ये बहुत आसान सारा फार्मूला था. दैट्स वाई आई डोंट डिस्कस एंड आई प्रेफर टू डिस्कस अलॉन्ग विद द मीडियन, बिकॉज व्हेन यू कैलकुलेट द मीडियन यू शुड फर्स्ट कैलकुलेट द मीन. तो ये चीज़ें आपको आगे डिस्कस करेंगे हम कि अनग्रुप डाटा का हम मीन किस तरीके निकालते हैं. लेकिन मैंने आपको सिंपली
ग्रुप डाटा का बता दिया है, अनग्रुप डाटा का हम आगे डिस्कस कर लेंगे, और अनग्रुप डाटा का भी मैंने एक दफ़ा वैसे एग्जांपल दे के आपको कैलकुलेट करवा दिया है। सो प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक मीन, एक सबसे ज़्यादा वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाने वाला या पोस्ट ग्रेजुएशन का ये क्वेश्चन है, ये जो पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मीन, अरिथमेटिक मीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डैट इज़ द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल समेशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू द ज़ीरो, ये एक प्रॉपर्टी है मीन की कि जितनी भी डेविएशंस होती हैं मीन से वो हमेशा हमेशा ज़ीरो होती हैं जब उनका सम लेते हैं। सम ऑफ, ये सम आपने लाजमी याद रखना है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ऑलवेज ज़ीरो। मैंने इसको कोई भी वैल्यू आप ले लें, मैंने रैंडमली वैल्यूज़ ली थी, तो इनको मैंने कैलकुलेट कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने जो वैल्यूज़ ली थी, मैंने करना था डैट इज़ द समेशन, डैट इज़ द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन, एक्स क्या है ऑब्जर्वेशन और एक्स बार क्या है मीन, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने इसको प्रूव करना है, तो मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन ले ली हैं। एक्स वैल्यू को देखें, ये जो एक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं, 2 4 8 10 12, ठीक है। अब मैंने इसका मीन निकाला है। अब जो मैं पीछे डिस्कस कर रहा था ना, अब ये ग्रुप डाटा जो है ये कौन से फॉर्म में है, ये अनग्रुप डाटा है। सिंपल ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में जो डाटा उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। जो क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा हो उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। तो अब देख लें अनग्रुप डाटा का यहाँ पे कैलकुलेट हो गया मीडियन के साथ, तो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। जो मैं कह रहा था कि बाद में कैलकुलेट करेंगे ना, वो यहाँ पे ही क्वेश्चन अगला आ गया कि इसके अंदर अनग्रुप डाटा के लिए आपने पहले इन ऑर्डर टू गेट द एक्स बार, ये एक्स बार क्या है, अरिथमेटिक मीन है। ये डाटा कौन सा है, अनग्रुप डाटा। सो अनग्रुप डाटा के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू द समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन एक्स करें कितना बनता है, ये समेशन एक्स 2 + 4 6 + 8 14 और 10 हमारे पास कितना हो गया 24 + 2 26 और 36 हो गया। समेशन एक्स हमारे पास 36 आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है टोटल, एन। सीरियल नंबर जब आप लिख लेते हैं ना तो फिर गलती होने के चांस कम होते हैं, आपको पहले ही पता लग जाता है कि एन की वैल्यू क्या है। सीरियल नंबर बेसिकली ऑब्जर्वेशंस की काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है 5 है, तो एन हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब एक्स बार हमारे पास जो आया डैट इज़ द 7.2। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, डैट इज़ द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब देखिए एक्स बार, एक्स तो पहले ही क्वेश्चन में गिवन था, एक्स बार हमने निकाल लिया। एक्स बार कितना आ गया 7.2 7.2, बिकॉज मीन जो होता है वो सारों का सेम ही आएगा, तो मीन आ गया हमारे पास, एवरेज वैल्यू आ गई डैट इज़ द 7.2। अब डिफरेंस निकालें, एक्स माइनस एक्स बार, इसका डिफरेंस निकाला है तो माइनस और पॉजिटिव के साइन को आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ पे माइनस क्यों, बिकॉज 2 में से -7.2 जब निकालेंगे तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल्स द अल्जेब्रिक सिंबल्स हमारे पास लाजमी आपने साथ लगाने हैं। ये कितना आ गया -5.2। सिमिलरली आगे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, वैसे पेपर के ऊपर इसकी पिक लगा दी है, 4 - 7.2 -3.2। अब जब इन सारों का आप सम करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, आप मैथमेटिकल कैलकुलेटर या वैसे भी आप सम कर लें, तो सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन, आप देखेंगे कि रिज़ल्ट आपको हमेशा ज़ीरो मिलेगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टी मीन की है कि जितनी भी डेविएशन होती हैं मीन से वो ऑलवेज ज़ीरो होती हैं। प्लीज़ बी रिमेंबर, इसको आप कोई भी, मैंने ये रैंडम वैल्यूज़ ली थी, ये किसी बुक में चीज़ें नहीं लिखी हुई, तो मैंने ये रैंडम वैल्यूज़ लेके आपको समझाने के लिए इसको कैलकुलेट कर दिया। बुक में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी होती है डैट इज़ द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, लेकिन उसकी आगे कैलकुलेशन नहीं दी होती। तो ये मैंने कैलकुलेशन रैंडमली ले लिया, बिकॉज कोई भी आप वैल्यू ले लेंगे मीन्स की सम ऑफ ऑल द डेविएशन, जो अगर सम कर लेंगे सारी डेविएशंस का, वो मीन से हमेशा ज़ीरो निकलेगी। ये याद रखनी है बात आपने। आगे देन वी हैव द सिंपल एडवांटेजेस होते हैं मीन के, क्या, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, मोस्ट वाइडली यूज्ड एवरेज। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से कौन सी है, तो वो आपने लिखना है कि वो मीन है, ठीक है। अब ये जो मीन है ये डिपेंड करता है डाटा की सारी वैल्यूज़ के ऊपर। अगर कोई भी वैल्यू डाटा में अनयूजुअल आ जाए तो मीन आपका चेंज हो जाएगा। और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एबनॉर्मल वैल्यू एज आई स्टेटेड दैट इट डिपेंड्स अपॉन द, ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है, ये आपने याद रखना है
कि ये इट डिपेंड्स ऑन द ऑल द वैल्यूज़ ऑफ डाटा। सो अगर कोई भी हमारे पास अबनॉर्मल वैल्यू आएगी तो हमारे पास वो मीन को अफेक्ट कर देंगे, तो इस तरह हमारा मीन गलत आ जाएगा। तो देन ये इसका एक डिसएडवांटेज या डीमेरिट है। और इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की स्क्यूनेस होती है। स्क्यूनेस एक जिस टेल के जिस तरफ डाटा ज़्यादा जमा हो जाए ना कर्व का, उसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। अगर पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर हो जाए तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और नेगेटिव वाली पे हो जाए तो नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। तो ये मीन जो होता है ना, हाईली स्क्यूड अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। और समटाइम्स मीन डज नॉट कन्वे द प्रॉपर सेंस। फॉर एग्जांपल मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन मे बी द 4.5 विच इज़ रिडिकुलस। फॉर एग्जांपल एक घर में 4.5 बच्चे कहना, अगर हम कहेंगे एक घर में 4.5 बच्चे होते हैं, तो ये तो एक अहमकाना बात होगी, बिकॉज बच्चे या 4 होंगे या 5 होंगे, ये 4.5 वाला चक्कर तो कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये मे नॉट कन्वे द प्रॉपर सेंस, सो इसको आपने याद रखना है। इट डज़ नॉट टेल अबाउट द साइज़ ऑफ डाटा। साइज़ ऑफ डाटा का नहीं बताती, ये सिर्फ एवरेज वैल्यू को आपका बता देती है। लेकिन ये डी मेरिट्स और मेरिट्स पेपर में या वाइवा में पूछ सकते हैं, बिकॉज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन हम कैलकुलेट करते हैं, तो मीन के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं। कि ये देख लें कि कई दफ़ा प्रॉपर सेंस नहीं प्रोवाइड करता है, अब नॉर्मल वैल्यू आ जाए तो ये इफेक्टेड हो जाता है। इस वजह से हम अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं, सच एज मोड एंड मीडियन। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मीडियन इन द नेक्स्ट लेक्चर। I discussed about the how to calculate the median and what is median.